types of diseases. Already we have discussed yesterday that there are three types of disease can be there. One is acute or chronic disease on the basis of their duration, ठीक है, and effect. On the basis of duration and effect. The first type of disease is on the basis of, these are the disease on the basis of what? Duration. And now tell me which disease remains for long period? Acute disease or chronic diseases? Chronic disease, yeah, it remains for the long time in the patient, and acute disease, it remains for the short time, and the effect of this disease is very less on the patient's body. But the effect of chronic diseases are more in the patient's body. second disease जो है type का congenital and acquired disease. Congenital, whether it is since birth or after birth. If it is since birth, we will call it what? Congenital disease. Congenital disease means this disease is caused since birth. This disease is already present in the person since birth. अगर बर्थ से, जन्म से ही है कोई डिजीज तो कॉन्जेनाइटल कहेंगे. और बाद में अगर डिजीज हुआ है, if the person has caught the disease after the birth, then we will call it acquired disease. तो कॉन्जेनाइटल डिजीज में से क्लेफ्ट है ना, डेफनेस है, डेफ कोई पर्सन अगर डेफ है, गूंगा है, ठीक है, डम्ब है, गूंगा है या बहरा है, कुछ भी है, तो दिस काइंड ऑफ डिजीज, डम्बनेस एंड डेफनेस, ये बचपन से अगर है तो दिस डिजीज विल बी कॉल्ड एज कॉन्जेनाइटल. ठीक है. और एक्वायर्ड डिजीज में जो डिजीज कॉल्ड आफ्टर बर्थ. अब ये डिजीज आपके दो तरह से हो सकते हैं. कौन कौन हो सकता है इनका बताएंगे? जो डिजीज एक्वायर्ड हुआ है, दैट डिजीज कैन बी ऑफ टू टाइप. फर्स्ट वन इज infectious and non-infectious. Infectious and non-infectious. Infectious disease क्या है? जो one person से दूसरे person में transfer हो जाता है. तो such disease are called infectious and communicable disease also. And non-infectious, it is not. Okay, now. And third जो disease है, third type of disease है, that is called genetic disorders. It is caused due to some problems in the gene and they can be hereditary also. Hereditary का मतलब क्या है? It can transfer from one generation to the next generation. So it may be hereditary also. It may be hereditary also. Hereditary. ठीक है. So these are the diseases. Yesterday we discussed acquired disease, which disease caught after birth. ठीक है. That can be infectious and non-infectious. Infectious are also called as communicable disease and non-infectious are called as non-communicable disease. Communicable disease क्या है? The disease which can transmit from diseased person to healthy person. If a disease is transmitted from diseased person, infected person to healthy person, then we will call it infectious or communicable. If disease is not transmitted from patients to healthy person, then we will call it non-infectious or or non-communicable disease. Right. तो डिजीज पर्सन से हेल्दी पर्सन में जो ट्रांसमिट हो जाते हैं डिजीज क्या क्या डिजीज है? कॉमन कोल्ड है, ट्यूबरक्लोसिस है, चिकन पॉक्स है, डेंगू है. दीज आर द डिजीज. दिस डिजीज कैन ट्रांसमिट फ्रॉम डिजीज पर्सन टू हेल्दी पर्सन. ठीक है. एंड नॉन इन्फेक्शियस कैन नॉट ट्रांसमिट. लाइक क्या क्या डिजीज है जो ट्रांसमिट नहीं होगा हेल्दी पर्सन में फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन? हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, कैंसर है. ठीक है. और कोई डेफिशिएंसी डिजीज अगर है, एनी डेफिशिएंसी डिजीज, मान लीजिए कोई अगर डेफिशिएंसी डिजीज है, डेफिशिएंसी डिजीजेस, ये सब डिजीज उधर डिजीज पर्सन से इन हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होगा. और उसके बाद हमने देखा था कि अगर इन्फेक्शियस डिजीज है
If the disease are infectious, look at it, children. If the disease are infectious, infectious disease का मतलब क्या? Which communicable, yes. So the disease which can communicate from diseased person to healthy person. तो disease पर से healthy person में transmit होने के लिए ऐसा क्या होता है जिसके थ्रू ये disease से healthy person में transmit होता है? Some agents are there. Some agents are there. That agents are called infectious agents, or we also call them pathogens. We also call them pathogens. उसको हम कहेंगे pathogens कहते हैं. Pathogens. Pathogens are nothing but we simply call them disease causing organisms. Pathogens are nothing but disease causing organisms. Simply इसको कह सकते हैं disease causing organism. ठीक है. So the agents which causes infectious diseases are called pathogens, and these pathogens are virus, bacteria, fungus, protozoans and worms. अब ये सबके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं. These are the infectious agents and some diseases which are caused from virus. Can you name some diseases which can be caused from virus? Common cold. या इस यहाँ पर आप देख रहे होंगे बहुत सारा कलेक्शन दिया है. सो मेनी कलेक्शंस आर देयर. कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, मम्प्स, चिकन पॉक्स, एड्स, हेपेटाइटिस बी. दीज आर ऑल caused. कोरोना आल्सो यू कैन ऐड इन दिस. बैक्टी पोलियो भी होता है. वेरी गुड. पोलियो इज आल्सो देयर. राइट. पोलियो इज आल्सो देयर. एंड नेक्स्ट वन इज बैक्टीरिया. ये इसमें आप पोलियो ऐड कर सकते हैं. पोलियो वायरस से. एंड लेटेस्ट जैसे कभी अपने बताया कोरोना वायरस से कोविड है ना. कोविड डिजीज. तो दिस डिजीज कैन बी कॉज्ड बाय वायरसेस. बैक्टीरिया. ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, टिटेनस, एंथ्रेक्स, फूड पॉइजनिंग, ऑल बैक्टीरियल इन्फेक्शन. वही ये सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही है बेटा. ये जितने भी इन्फेक्शन देख रहे हैं, कोलेरा, टाइफाइड, टिटेनस, एंथ्रेक्स, दीज आर ऑल बैक्टीरियल इन्फेक्शन ओनली. ठीक है. बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ये डिजीज हो गया. ठीक है ना. सो दीज आर द बैक्टीरियल इन्फेक्शन. ओके. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट फंगस. फंगस कॉजेज स्किन इन्फेक्शन. एक इसमें डिजीज आपने देखा था, कल हमने डिस्कस किया था क्या? रिंग वर्म है ना. रिंग वर्म, दाद खाज खुजली जो होती है ना, वो सब फंगल इन्फेक्शन से होता है. रिंग वर्म. ठीक है. प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ से डिजीज क्या क्या हो सकता है? कल डिस्कस किया था. मलेरिया. मलेरिया इज कॉज्ड बाय अ पैरासाइट. दैट पैरासाइट्स नेम इज, डू यू नो द नेम ऑफ दैट पैरासाइट? विच प्रोटोजोआ कॉजेज मलेरिया? मलेरिया इज कॉज्ड बाय, नो, मॉस्किटो. फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो इज द कैरियर ऑफ दैट पैरासाइट. वो क्या वेक्टर है. वेक्टर अभी हम पढ़ेंगे, एक वेक्टर पढ़ेंगे. वेक्टर के ये जितने भी वायरस जो है, ये किसके किसके ये थ्रू ये मूव होता है. ये अपने आप आपके बॉडी तक नहीं आएगा उड़ करके या किसी भी, ये कोई ना कोई ले करके आपके बॉडी में आएगा. या तो कंटामिनेटेड फूड के थ्रू आएगा, नहीं तो कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू आएगा, या नहीं तो कोई मॉस्किटो के थ्रू आएगा, नहीं तो फिर किसी मच्छर के थ्रू आएगा, मच्छर फ्लाइज के थ्रू आएगा, मक्खी हाउस फ्लाइज के थ्रू आएगा. तो कोई ना कोई इसको लेकर के आएगा आपके पास. ये खुद ब खुद ट्रैवल नहीं करता है. दे डू नॉट ट्रैवल ऑन इट्स ओन. ये इट इज विल बी, दे ऑल विल बी कैरिड बाय सम एजेंट्स. दोज एजेंट्स आर कॉल्ड वेक्टर. अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में. ठीक है. उसको कैरियर कहते हैं. तो ये मलेरिया जो है, इट इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स. और उस प्रोटोजोन्स का कैरियर कौन है? फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के अंदर वो रहता है. उसका नाम क्या है जो रहता है? अभी somebody told प्लाज्मोडियम. किसने कहा था प्लाज्मोडियम? स्नेहांश. yes, good. So plasmodium is the parasite, is the protozoa.
दिस प्रोटोजोआ कॉजेज मलेरिया एंड दिस प्लाज्मोडियम किसके अंदर रहेगा? मॉस्क्विटो. विच मॉस्क्विटो? फीमेल एनोफ्लिज मॉस्क्विटो विल कैरी दिस प्लाज्मोडियम. और जब इट बाइट्स, व्हेन इट बाइट्स टू अस, जब ये बाइट करेगा, इट विल इंजेक्ट दिस प्लाज्मोडियम इन आवर ब्लड, और ये प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड में आ जाएगा एंड इट विल कॉज मलेरिया टू अस. समझ में आया? तो उसी तरह से कालाजार भी प्रोटोजोआ से होगा. अमेबिक डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस, ये सारे डिजीज जो है प्रोटोजोआ से होंगे. आपको मैं आज एक टास्क देता हूँ. आई एम गोइंग टू गिव यू अ टास्क टुडे. दिस इज होम असाइनमेंट. ये जितने भी डिजीज हैं, आपको भी मैंने कहा था कॉमन कोल्ड. कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय विच वायरस? ये वायरस से होता है ना. तो विच वायरस, द नेम ऑफ दैट वायरस यू मस्ट राइट. इंटरनेट से सर्च कीजिए और कॉमन कोल्ड किस वायरस से होगा वो लिखिए. इन्फ्लुएंजा किस वायरस से होगा, उस वायरस का नाम लिखना है. मिसल्स किस वायरस से होगा, उस वायरस का नाम लिखना है. मम्प्स किस वायरस से हो रहा है, दैट वायरस का नाम लिखना है. दैट विल बी द टास्क फॉर यू. इससे क्या होगा कि आपके बहुत सारे वायरस का नाम भी याद हो जाएगा और डिजीज भी पता चल जाएगा. ठीक है. अब इसी तरह से ये जो मलेरिया, कालाजार, अमीबिक डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस, ये किस विच प्रोटोजोन्स कॉज दिस डिजीज, नेम दैट प्रोटोजोन. उस प्रोटोजोआ का नाम पता करना है. इंटरनेट से सर्च कीजिए और ये सब एक लिस्ट बनाइए. ठीक है. और ये वर्म्स, वर्म्स कॉजेज इंटेस्टिनल इन्फेक्शन. इंटेस्टिनल इन्फेक्शन, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है. ठीक है. और एलिफेंटिएसिस, ये नाम सुना आपने, एलिफेंटिएसिस. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फाइलेरिया. फाइलेरिया, फाइलेरिया. एंड इसमें क्या होगा कि जो पेशेंट है, उस पेशेंट का जो लेग है वो कैसा हो जाएगा? इट विल स्वेल, फूल जाएगा. स्वेल एंड इट विल लुक लाइक एलिफेंट्स लेग. एलिफेंट की लेग की तरह दिखाई देगा. हाँ. एलिफेंटिसिस एस्केलेमेंथिस से होता है. बुचरेरिया वान क्रॉफ्टाई, इसका आप नाम सर्च करना. जब इसका नाम सर्च करेंगे तो यू विल फाइंड दिस इज बुचरेरिया बानक्रॉफ्टाई, बानक्रॉफ्टाई. ठीक है. तो ये इसका क्या है, ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से ये होता है. तो इसका जो कैरियर है कौन है? इसका कैरियर मॉस्क्विटो है, क्यूलेक्स है ना. इस पैरासाइट का कैरियर, कैरियर कौन है? किसके बॉडी के अंदर ये आएगा आपके पास? क्यूलेक्स, मच्छर के थ्रू आएगा. ठीक है. क्यूलेक्स मॉस्क्विटो. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब इसमें कोई पूछिए कि व्हाट इज वेक्टर, वेक्टर क्या है? तो अभी हम देखेंगे बेटा, देखेंगे, आपको समझ में आएगा कैसे कैसे वो डिजीज आपके पास पहुंचता है. डिजीज नहीं पहुंचता है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म पहुंचेगा आपके बॉडी में. डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन है? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म क्या क्या है? ये सभी थे. दीज आर ऑल डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स. ये वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, वर्म्स, दीज आर ऑल डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म. दिस विल कम टू योर बॉडी. अब ये आपके बॉडी में कैसे आएगा? आपके जब बॉडी में, जब अभी देखिए, अभी कोरोना है ना, कोरोना, कोरोना वायरस आपके बॉडी में आएगा तभी तो आपको कोविड पॉजिटिव आएंगे ना. कोरोना डिजीज कब होता है? अगर मान लीजिए वो किसी भी ऑब्जेक्ट में, आपने, आपके दरवाजे के पास है या किसी ऑब्जेक्ट में कोरोना है, आप जब तक उसको टच करने नहीं जाते हैं और वो आपके बॉडी के अंदर आता है, उसको टच करने के बाद आप बिना हाथ धोए कुछ खा लेंगे, उसके बाद फूड के थ्रू वो फूड में आ जाएगा, फूड के साथ आपके बॉडी में आ जाएगा. लेकिन अगर आप कोरोना, कोई भी ऑब्जेक्ट आपके घर में रखा हुआ है और उसमें लगा कि वो आप जो मार्केट से जो पॉलिथीन आप लेके आए हैं, उस पॉलिथीन में कोरोना वायरस हो सकता है, तो आप उस पॉलिथीन को छोड़ दीजिए. यू शुड नॉट टच इट. जब तक आप टच नहीं करेंगे, उसके पास आपके जाएंगे नहीं, तो वो आपके पास आएगा नहीं, वो वहीं रह जाएगा. ठीक है. वो फिर कैसे आएगा? आप उस पॉलिथीन को उठा करके आप लाएंगे घर में, किचन में लाएंगे या कहीं अपने पास कहीं रखेंगे, उसको आपने छुआ, छूने के बाद वो आपके हाथ में आ गया, हाथ से आपने फिर फेस टच किया या फिर वो उसी हाथ से कुछ आप खा लिए, तो वो हाथ से आपके हैंड्स के थ्रू वो किस फूड में चला गया और वो फूड से आपके बॉडी के अंदर आ गया, फूड के साथ. तो जब तक आपके बॉडी के अंदर कोई भी माइक्रोब्स इंटर नहीं करता है,
तब तक आपको डिजीज नहीं होगा। इसलिए आपको क्या करना है, यू हैव टू स्टॉप दैट माइक्रोब्स फ्रॉम एंटरिंग इन योर बॉडी। आपकी बॉडी में एंटर करने से उसको रोक दीजिए, तो आपको डिजीज होगा ही नहीं। जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, ये आपकी बॉडी में जब तक अंदर नहीं जाएगा तब तक आपको डिजीज नहीं होगी। तो बेटर है, लेकिन अब ये पता करना है ना हमें कि ये अंदर किस किस मीडियम से आता है, किस किस माध्यम से आपके बॉडी के अंदर घुसेगा, किस किस मोड से आपके अंदर ये ट्रांसफर हो जाएगा। तो वो मोड हम देखेंगे। उसका मीन्स क्या है, व्हाट आर द मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, किस किस मीन्स से ये डिजीज होता है। मीन्स मतलब मोड्स, तो मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, और इसको सिंपल कर सकते हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। डिजीज किसी के पास पहुंच रहा है तो उसके क्या रीजन और क्या मीडियम हो सकते हैं ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। ठीक है, तो हम आज वही पढ़ने जा रहे हैं मेनली, डिजीज को कैसे हमारे पास पहुंचेगा। तो इन्फेक्शियस डिजीज जो है स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के पास आएगा। आप मान लीजिए कोरोना पॉजिटिव कोई पर्सन है, उसके पास आप जाएंगे, सपोज उसके आसपास आप खड़े हैं, तो केवल खड़े रहने से आपकी बॉडी में नहीं आएगा। कब आएगा आपकी बॉडी में वो वायरस, जब उस पर्सन, जो पॉजिटिव पर्सन है, वो स्नीज करता है या छींकता है या खांसता है, कफिंग करता है, तो उसके मुंह से ड्रॉपलेट्स निकलेंगे और वो ड्रॉपलेट्स फिर आपकी बॉडी तक पहुंच सकता है, हवा के थ्रू, एयर के थ्रू आप तक पहुंचेगा और तब आपकी बॉडी के अंदर जाएगा। लेकिन डिस्टेंस मेंटेन करके आप खड़े हैं तो इट विल नॉट कम टू यू। और जब वो, इसीलिए कह रहे हैं ना कि आप मास्क लगा के रखेंगे। जब मास्क से कवर कर लिया अपना फेस आपने, और आईज भी कवर कर लीजिए, तो आईज और फेस, यही तीन चीजें हैं, नाक, मुंह और आंख, ये तीन प्लेसेस है जहां से वायरस आपकी बॉडी में अंदर जाएगा। ये तीनों को बंद रखा आपने, नहीं जाएगा अंदर। ठीक है, थ्रू एयर, तो कैसे जाएगा वो आपकी बॉडी में, थ्रू एयर, वाटर, फूड और वेक्टर्स। वेक्टर्स मॉस्क्विटो हो सकता है, हाउस फ्लाइज हो सकता है, दीज आर द वेक्टर्स। फिजिकल कांटेक्ट से आएगा। अब मान लीजिए कोई कोरोना पॉजिटिव है और आप आराम से उसके साथ बैठ करके नाश्ता कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उसको उसके साथ खेल रहे हैं, तो फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है ना, तो फिजिकल कांटेक्ट से तो आएगा। इफ यू आर डूइंग लाइक दिस, तो इफ देयर इज फिजिकल कांटेक्ट विथ योर फ्रेंड्स, those who are positive, तो इट में कम टू यू ऑल्सो, आपके में भी आ सकता है। तो कोशिश कीजिए कि वैसे लोगों से जो इन्फेक्टेड हैं उनके साथ नो फिजिकल कॉन्टेक्ट शुड बी केप्ट। एंड वन मोर रीजन, वन मोर मीन्स कैन बी देयर, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। तो जो डिजीज पर्सन है उसके साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट भी नहीं रखना है, अदरवाइज इट में ट्रांसमिट थ्रू दिस कॉन्टेक्ट ऑल्सो। आइए तो देखेंगे थ्रू एयर से, एयर के थ्रू कौन कौन सा डिजीज ट्रांसफर होता है, कॉमन कोल्ड, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, दीज आर ऑल ट्रांसमिटेड फ्रॉम एयर। ठीक है, थ्रू एयर। थ्रू वाटर, वाटर के थ्रू कौन कौन सी डिजीज होगी, कोलेरा, अमेबिक डिसेंट्री, यहाँ एक और ऐड कर सकते हैं जॉन्डिस। ठीक है, जॉन्डिस भी, जो गंदा पानी आप पियेंगे तो जॉन्डिस होने के चांसेस हैं आपको, तो थ्रू कंटामिनेटेड वाटर। उसके बाद डिसेंट्री है, डायरिया हो सकता है, या आप इसमें डायरिया लिख सकते हैं, डायर होइया। डायरिया कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर, अगर गंदा वाटर है तो उसमें आ जाएगा आपकी बॉडी में। थ्रू वेक्टर्स, वेक्टर्स मतलब वेक्टर्स क्या क्या हो सकता है, मॉस्क्विटो और फ्लाइज। उसके बॉडी से आपको जब बाइट करेगा, अब फ्लाइज में कैसे आएगा, फ्लाइज से कैसे आपके बॉडी में पहुंचेगा, फ्लाइज तो बाइट नहीं करता है, then how will it come to your body? हाँ, यस, जो जर्म्स हैं, वो जर्म्स है उसके लेग्स में या उसके मुंह से, यस, दे सीट ऑन आवर फूड, और एंड उस फूड को वो कंटामिनेट कर देगा, एंड व्हेन यू ईट दैट फूड, दैट विल go into your body, and along with food that germs will also enter in your body, और वो फिर आपको डिजीज कॉज कर सकता है। तो फ्लाइज बाइट नहीं करता है, फ्लाइज क्या करता है, उस फूड को, फूड जो भी खाना आप खा रहे हो उस खाने को गंदा कर देता है, डर्टी कर देगा,
और वो जर्म्स उसमें लीव कर देता है, ठीक है। मॉस्किटो, मॉस्किटो बाइट से, मॉस्किटो से मलेरिया बाइट किया, उसके अंदर प्लाज्मोडियम है, और वो बाइट जब करेगा तो इट इंजेक्ट प्लाज्मोडियम पैरासाइट इन आवर ब्लड, तो हमारे ब्लड में छोड़ देगा, और फिर प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड से हो करके पूरे सेल्स में जाएगा। इट विल स्टार्ट ईटिंग लिवर सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, उसको खाना शुरू कर देगा, और धीरे धीरे करके आपके बॉडी में टॉक्सिन बनेगा, और उसी टॉक्सिन से मलेरिया हो जाएगा। सिमिलरली डेंगू ऑल्सो, येलो फीवर, तो दीज आर ऑल कॉज्ड बाई मॉस्किटोस, ठीक है। मॉस्किटो, फ्लाइज से क्या क्या हो सकता है, कंटामिनेटेड फूड और वाटर, तो जितना फूड और वाटर जो फ्लाइज की वजह से कंटामिनेट हो जाता है, मतलब डर्टी हो जाता है, तो उसको खाने से टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, डायरिया, डिसेंट्री, ये सभी हो सकता है, ठीक है। एंड थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट, अगर सेक्सुअल कांटेक्ट और फिजिकल कांटेक्ट है, तो सेक्सुअल और फिजिकल कांटेक्ट से जो डिजीज है, सिफिलिस, एड्स, these are all diseases, these are called sexually transmitted diseases, they are called STDs, STD, ये जितने भी STDs हैं, वो STD can transmit from sexual contact, these are called sexually transmitted diseases, ठीक है। sexually transmitted disease can be transmitted from one person to another person through sexual contact, not only sexual contact, एक और भी रीजन है कि एड्स जैसे एक डिजीज है, एड्स, एड्स वायरस कैन ऑल्सो बी स्प्रेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब किसी के ब्लड में ऑलरेडी HIV वायरस है, एड्स इज कॉज्ड बाई विच वायरस, कैन यू टेल मी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स? वेरी गुड, एड्स डिजीज नहीं बेटा, सिंड्रोम, एक्वायर्ड, एक्वायर्ड इम्यूनो D4 deficiency, deficiency, S4 syndrome, syndrome caused by which virus? HIV, HIV virus, HIV, HIV का मतलब फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, वेरी गुड, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, डेफिशिएंसी वायरस, तो इस वायरस से ही ये डिजीज हो जाती है उनके हमारे बॉडी में। तो इसको रोकने के लिए इसका जो ट्रांसमिशन का क्या क्या मोड है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स, कोई पूछेगा कि एड्स कैसे कैसे ट्रांसमिट हो सकता है, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स, तो बताएगा क्या क्या ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स, एड्स कैसे कैसे हो सकता है, किसी पर्सन को छूने से होता है क्या एड्स? नहीं होगा, कैसे होगा? ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन, उसके ब्लड में ऑलरेडी HIV वायरस है और वही ब्लड किसी दूसरे पर्सन में डाल दिया, तो उसको हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है। दूसरा कैसे हो सकता है, इन्फेक्टेड, इन्फेक्टेड निडिल, निडिल जैसे मान लीजिए आपको ब्लड मैंने इंजेक्शन दिया और वही इंजेक्शन किसी दूसरे, उसी निडिल से दूसरे को भी इंजेक्शन दे दिया, तो हो सकता है इन्फेक्टेड निडिल्स, ठीक है। रेजर्स, रेजर मतलब शेविंग रेजर्स, ठीक है, एटसेट्रा, इसकी वजह से भी हो सकता है। सेकेंड, थर्ड रीजन क्या हो सकता है कि मदर से, मदर को अगर एड्स है तो मदर टू हर बेबी, बेबीज को हो सकता है, बेबीज जो उसके वुम्ब में है, इन वुम्ब मतलब उनकी यूटेरस में जो ग्रो हो रहा है बच्चा, उसको हो सकता है, फीटस कह सकते हैं, मदर से फीटस में हो सकता है। और फोर्थ रीजन जो है सेक्सुअल कांटेक्ट से हो सकता है, अगर सेक्सुअल कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, तो सेक्सुअल कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड, तो ये सब रीजन्स हैं। तो अगर आपको एड्स रोकना है तो ये सारे जो भी ये 4 रीजन है उसको आपको प्रिवेंट करना है।
These are the modes of transmission of AIDS. Is it clear to all of you? And मदर से बच्चे में ब्रेस्ट फीडिंग से भी हो सकता है. अगर दो मदर हु आर फीडिंग ब्रेस्ट फीडिंग टू हर चाइल्ड, ठीक है, तो उसको बच्चे में आ सकता है वो डिजीज. तो ये सारे मीडियम्स हैं, ये सारे मोड्स है डिजीज ट्रांसमिशन का, थ्रू एयर, थ्रू वाटर, थ्रू वेक्टर और थ्रू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट. तो हाउ मेनी मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज आर देयर? कितने हैं? 4 नहीं, आप पांच भी लिख सकते हो. थ्रू एयर, थ्रू वाटर, थ्रू फूड, कंटामिनेटेड फूड खाने से भी हो सकता है, थ्रू वेक्टर्स एंड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट. So these are the different modes, and today we have finished this one.